A very good morning, students. Welcome to my new video. In this video we are going to learn about the remaining part of the sixth lesson of history, colonialism, urbanization and de-urbanization. So you should take your SST textbook and open your page number 49. This video is the part 2 of this lesson. So what we have seen in the previous video, we have seen some words and their meanings in the beginning of this lesson, and you should write the words and meanings in your notebook also, okay, because it was the homework of first video. I hope all of you have done your homework, okay. After these words we have seen urbanization and de-urbanization. You know what is mean by urbanization? Urbanization means developed the cities, okay, and what is mean by de-urbanization? Declined the cities, okay. What is the meaning of decline? End होना, ख़त्म होना, okay, and lost the importance of cities also, okay. It is a de-urbanization. After this urbanization, de-urbanization, we have seen growth of new towns and cities. Gradually, in different parts of India's new towns and cities developed after the decline of the old towns and cities. And prior British period, there were some cities developed during the Mughal period. Okay, some cities had importance, but during the British period, these cities were declined there, okay, and after it there were some new cities developed. Got it? Means कुछ cities declined हुई थी तो कुछ cities यहाँ पे developed हुई थी during the British period. After it we have seen about port cities, non-coastal cities, then hill stations, and after this we have seen cantonment also. Then we have solved the MCQs. Then old and the new urban centers differences. After it we have seen administration. Then next topic, new urban centers, and after it we have seen about again administration. Then we have solved the MCQs on page number 49, okay, and after these MCQs we have to see about the new topic, okay. In this video we will see new topic, law and order, but before it there is a very little parts is remaining of previous topic, okay. So we have to see it. Lord Dalhousie established the Public Works Department that was responsible for constructing and repairing roads, bridges and canals. And ये जो लॉर्ड डलहौसी थे, इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था. And which were the responsibilities of this department? Constructing and repairing the roads. जो भी roads थे इंडिया के, ये कंस्ट्रक्ट करना और उसे रिपेयर करना. ब्रिज, जो भी ब्रिजेस थे, ये कंस्ट्रक्ट करना एंड रिपेयर करना. एंड कैनल्स, कंस्ट्रक्ट द कैनल्स एंड repair it also. These were the responsibility of public work department, okay. This department repaired the Grand Trunk roads linking Calcutta with Peshawar. Then law and order. Lord Cornwallis also established a regular police force to maintain the law and order. And ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स भी एस्टैब्लिश किया था. फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, ओके. द इंडियन पिनल कोड was framed in 1860 under Lord Macaulay that listed out different categories of criminals. एंड ये जो इंडियन पिनल कोड है, ये 1860 को फ्रेम हुआ था. किसके अंडर में? लॉर्ड मैकले.
The Indian Police Act of 1861 concluded the final changes, and there were 1861 in 1861 Indian Police Act concluded, okay, the final change. The new police department was headed by an Inspector General of Police who was assisted by the Deputy Inspector General, the Assistant District Superintendent of Police, the Inspector, the Head Constable, the uh, सर्जेंट एंड कॉन्स्टेबल्स एंड यहाँ पे न्यू पुलिस डिपार्टमेंट भी एस्टाब्लिश हुआ था एंड यहाँ पे हेड कौन रहते थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इन्हें डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हेल्प करते थे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेल्प करते थे एंड इंस्पेक्टर द हेड कांस्टेबल एंड द सर्जन एंड कांस्टेबल, ये सभी लोग यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हेल्प करते थे, असिस्टमेंट हेल्प करना, ओके। A complete jail code was also prepared. The main objective of the police reform was to set up a uniform and effective police administration in the country. And there were jail code was also prepared. And there were main objectives of the police reform. जो police reforms यहाँ पे हुआ था, reforms means changes, सुधारना. What was the main objective of this police reform? Was to set up a uniform set करना, okay? आपने देखा होगा मूवीज़ में वगैरह जो भी ब्रिटिशों का पीरियड था वहाँ पे पुलिस को यूनिफॉर्म रहते थे, ओके। एंड इफ़ेक्टिव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था ये इफ़ेक्टिव करने के लिए ये रिफॉर्म यहाँ पे किया गया, ओके। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. The British rulers realized the importance of cheap and easy means of transport to reach the nooks and corner of the country. एंड ये जो ब्रिटिश थे अपने इंडिया में, इन्हें रियलाइज़ हुआ था, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, रूलर्स थे, इन्हें रियलाइज़ हुआ था कि चीप एंड इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है. वाई? टू रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, कंट्री के हर एक कोने में पहुंचने के लिए बहुत ही चीप एंड इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ओके. लॉर्ड डलहौसी proposed a network of 4 main trunk lines to the connect the interior of the country with major ports. एंड जो मेजर पोर्ट्स थे इंडिया के, इन्हें कनेक्ट करने के लिए लॉर्ड डलहौसी ने रेलवे नेटवर्क को प्रपोज किया. By 1869, more than 4,000 miles of rail track had been laid, and 1869 में 4,000 miles ऑफ रेल ट्रैक के ऊपर रेलवे लाइंस बनाई गई. By 1906, the country had nearly 30,000 miles of railway track. Next topic is here, postal and the telegraph system. The introduction of railways played a major role in the establishment of an efficient and modern post and telegraph system in India. And जो भी modern post and telegraph system था in our India, जो एफिशिएंट एंड मॉडर्न था, ओके. तो ये इस्टेब्लिश होने में रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, ओके. द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वाज इनॉग्रेटेड इन 1853 एंड देयर वर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इनॉग्रेटेड इन 1853. 1853 में जो कलकत्ता से लेके आगरा तक फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी, ये इनॉग्रेट हुई थी. लॉर्ड डलहौसी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द यूज़ ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड देयर वर
postage stamps, use of postage stamps introduced by Lord Dalhousie. Okay, then next topic, architectural face of New Delhi. And this New Delhi, this city constructed during the British period. Okay, and now we have to study about this process. Okay, how this city was constructed there, we have to study about it. New Delhi constructed in 1911 on Resina Hill, was inaugurated in 1931 as the capital of British India. एंड ये जो न्यू दिल्ली सिटी है ये 1911 को कंस्ट्रक्ट की गई एंड ये 1931 को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी. ओके, द मेन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड वर द वाइसरॉयज पैलेस, नाउ राष्ट्रपति भवन, Council's chamber, now Parliament House, the North Block and the South Block, India Gate, Connaught Place and the several public buildings. Now turn your page, open your page number 50. Okay, there were in this new Delhi, in this city, main buildings were constructed. Okay, which were these main buildings? Viceroy's Palace, Council's Chamber, then the North Block and the South Block, and India Gate, and several public buildings also. Okay, government buildings were mostly constructed. Prominent features of these new buildings were domes, loggias, chazas, chhatris and jalis, borrowed from ancient and medieval architecture. एंड जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंस्ट्रक्ट की थी? रेड एंड बल्ब कलर्ड सैंडस्टोन से. बल्ब कलर्ड सैंडस्टोन्स मीन्स लाइट येलो कलर. ओके, the prominent features, and there were some prominent features of these buildings, which were these domes means rounded shape. Okay, and loggias means a gallery or room with one or more open side, इसे हम गैलरी भी बोल सकते हैं. ओके, and then chazas and chhatris means umbrella shape construction. Okay, and jalis, and all these features borrowed from the medieval architecture and ancient architecture. जो भी ancient and medieval architecture था in our India, and these all features had taken from these architecture. Okay, the secretariat building that has important government offices was designed by Baker, and Lutyens designed the India Gate, the Parliament House and the Viceroy's Palace. and जो इंडिया गेट है, जो पार्लियामेंट हाउस एंड वॉइसरॉय पैलेसेस है, ये ल्यूटिन्स डिज़ाइन से बनाए हुए हैं. ल्यूटिन्स डिज़ाइंस मीन्स दैट इज़ वन वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, इंग्लिश आर्किटेक्चर. ओके, जो ब्रिटेन का आर्किटेक्चर स्टाइल था, ये ल्यूटेन स्टाइल है. ओके, ल्यूटेन डिज़ाइंस. The India Gate was built in the memory of soldiers who laid down their lives in the First World War. और जो इंडिया गेट है ये कैसे बिल्ड किया हुआ है? इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए उनके मेमोरी में ये गेट बनाया है, इंडिया गेट. डिज़ाइंड बाय एडविन ल्यूटिन्स. और किसने बनाया ये? एडविन ल्यूटिन्स ने. इट इज़ 42 मीटर्स हाई एंड बिल्ड फ्रॉम रेड भरतपुर सैंडस्टोन. एंड ये 42 मीटर्स हाई है और ये रेड भरतपुर सैंडस्टोन से बिल्ड किया हुआ है. द पार्लियामेंट हाउस इज़ ह्यूज सर्कुलर colonnaded buildings. Colonnaded means row of columns. ओके, जो रो रहते हैं कॉलम्स के, खंबे रहते हैं, उसे हम बोलेंगे कॉलोनेडेड. और ये जो पार्लियामेंट हाउस है ये बहुत बड़ा सर्कुलर
कॉलोनियल बिल्डिंग मीन्स बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, वहाँ पे पूरे हमें कॉलम्स ही दिखेंगे। और पार्लियामेंट फंक्शंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग, और हमारा जो पार्लियामेंट फंक्शंस हमारे जो पार्लियामेंट फंक्शंस होते हैं ये यही बिल्डिंग में होते हैं। ओके, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली एंड द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं इंडिया के, एंड राष्ट्रपति भवन ये न्यू दिल्ली के सेंटर में लोकेटेड है। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज द रेसिडेंस ऑफ द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे इंडिया के वाइसरॉय ब्रिटिश वाइसरॉय रहते थे। बिल्ट इन द ईयर 1929, it is spread over about 330 acres and consists of 340 rooms, and ये 1929 को बिल्ड किया था, एंड ये 330 acres पे बना हुआ है, एंड 340 rooms are there. मुगल गार्डन्स टू द वेस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, एंड ये बिल्डिंग के वेस्ट में मुगल गार्डन्स है, and it is a huge garden especially known for its rare roses including black roses, and specially ये किसके लिए जाना जाता है, अलग अलग रोजेस के लिए, अलग अलग वेराइटीज़ के रोजेस यहाँ पे है, एंड ब्लैक रोजेस भी यहाँ पे है। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द केस स्टडी ऑन पेज नंबर 50। ओके, केस स्टडी ऑफ दिल्ली। In this case study we have to study about the city Delhi. Delhi, the capital of India, you know, okay, is one of the oldest cities in the world, और ये एक सभी ओल्डेस्ट सिटी में से एक सिटी है पूरे वर्ल्ड में, विच हैज़ बीन कंटिन्यूसली इनहैबिटेड, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली हैबिटेशन था, लोग रहते थे from the earliest period. Okay, in the past it has been the capital of the several mighty empires, and in earlier period, in medieval period, these Delhi was the capital of several empires, अलग अलग empires की ये capital रह चुकी है। Okay, several monuments present on the landscape of Delhi speak about his history, एंड जो मॉन्यूमेंट्स है ये इससे हमें दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इवन बिफोर द ब्रिटिश मेड न्यू दिल्ली देयर कैपिटल, दिल्ली सीम्स टू हैव बीन द साइट ऑफ द 7 cities. In the early parts of the 19th century, culture and literature prospered, and the British lived along with the affluent Indians within the walled city. And 19th सेंचुरी के शुरुआत में ये जो दिल्ली सिटी थी, यहाँ का लिटरेचर, यहाँ का कल्चर बहुत ही प्रॉस्परस था। ओके, एंड जो ब्रिटिश यहाँ पे रहते थे ये लैंडलॉर्ड लोगों के साथ दिल्ली में रहते थे। इंडियंस मीन्स जो वॉल्ड सिटी थी। ओके, वॉल्ड सिटी मीन्स वहाँ पे वॉल बनाई गई थी अराउंड द सिटी। द दिल्ली कॉलेज दैट बिगैन एज अ मद्रासा एस्टैब्लिश्ड इन 1792, एंड जो कॉलेज है मद्रासा ये 1792 में एस्टैब्लिश हुआ था। prospered as a center of the learning in the field of science and humanities. In fact, the period of the revolt of 1857 is often referred to as a Delhi Renaissance. However, after suppressing the revolt and the exile of Bahadur Shah, a military cantonment was set up in Delhi by demolishing pavilions and forts, clearing gardens around the forts, and filling the water canals. Later, the western wall of the Shahjahanabad was demolished to expand the city and lay down the railway lines. एंड जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का,
ये सप्रेस किया गया था। एंड बहादुर शाह जो थे ये यहाँ से फरार हो चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री कैंटोनमेंट सेट किए गए। जो पैवेलियन जो फोर्ट्स थे दिल्ली के ये डिमोलिश करके, ओके, उन्हें हटाया गया। पैवेलियंस थे एंड कुछ फोर्ट्स थे उसे हटा के यहाँ पे कैंटोनमेंट सेट किए गए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैंटोनमेंट? अ टाउन विथ अ परमानेंट मिलिट्री कैंप्स। ओके, कुछ मिलिट्री कैंप्स यहाँ पे बनाए गए। ये जो भी फोर्ट्स थे ये डिमोलिश करके, कुछ पैविलियंस भी वहाँ पे थे। क्लियरिंग गार्डन्स अराउंड द फोर्ट एंड फिलिंग अप द वाटर चैनल्स। एंड जो वहाँ पे गार्डन्स बनाए गए थे ये भी क्लियर किए। एंड जो वाटर कैनल्स थे ये भी फिल करके यहाँ पे टाउन्स बनाए गए। एंड जो शाहजहानाबाद की वॉल थी ये डिमोलिश करके जो सिटी थी ये यहाँ पे एक्सपांड की गई। ओके, एंड वहाँ पे रेलवे लाइन भी बनाई गई। जो वेस्टर्न वॉल थी शाहजहानाबाद की ये डिमोलिश करके वहाँ पे रेलवे लाइन बनाई गई एंड सिटी एक्सपांड कर दी गई। The British now lived in the civil lines area away from the crowded walled city। एंड जो ब्रिटिश थे अब ये सिविल लाइन एरिया में रहने लगे जो क्राउडेड वॉल्ड सिटी से दूर थी। To assert the supremacy, the British even organized a grand darbar in Delhi in 1877। and 1877 में दिल्ली में ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ब्रिटिश। ओके, in December 1911 King George V was crowned in England and a darbar was held in Delhi to celebrate the events। and 1911 जो किंग जॉर्ज वी थे ये इन्होंने दिल्ली में जो भी उन्हें सक्सेस हासिल हुआ था यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। ओके, जो दरबार वहाँ पे लिया था दिल्ली में और वहीं पे सेलिब्रेशन हुआ था। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड। एंड जो कैपिटल बनाई गई थी दिल्ली को ये भी यहाँ पे अनाउंस किया था। सर एडविन ल्यूटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर वर द two great architects who designed New Delhi। and there were two great architects and these two persons designed the New Delhi। न्यू दिल्ली का इन्होंने डिज़ाइन बनाया था सर एडविन ल्यूटेंस एंड द हर्बर्ट बेकर्स ने। न्यू दिल्ली वॉज designed to be a city with a garden, broad roads, fountains, parks and big government office buildings and mansions। एंड ये जो न्यू दिल्ली है ये कैसे डिज़ाइन किया हुआ है? इसका गार्डन बनाए थे, ब्रॉड रोड्स एंड फाउंटेन्स एंड पार्क्स ऑल्सो एंड कुछ बिग गवर्नमेंट ऑफिसेस यहाँ पे बिल्ड्स किए थे। एंड मैंशंस, मैंशंस मीन्स हवेली। ओके, अनलाइक द ओल्ड सिटी न्यू दिल्ली डेफिनेटली हैड बेटर वाटर सप्लाई। और न्यू दिल्ली में बहुत ही अच्छा वाटर सप्लाई था जो ओल्ड सिटी में नहीं था। सीवेज डिस्पोजल एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़, और ये जो सभी फैसिलिटीज़ थी ये बहुत ही अच्छी थी न्यू दिल्ली में। ओके, ओल्ड सिटी से। ड्रेनेज मीन्स जो नालियाँ रहती है उसे हम बोलेंगे ड्रेनेज। ओके, the colonial era bungalows unlike the havelis were single store structure set amid 1 or 2 acres of open land। and ये जो कॉलोनियल पीरियड था यहाँ पे बेंगलोज कैसे थे? हवेली जैसे नहीं थे। तो ये सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर्स था एंड ये 1 और 2 एकर्स ओपन लैंड में बनाए गए थे।
The architecture of the city was a combination of Western classical elements with a traditional Hindu and Islamic architecture. And ये जो सिटी न्यू दिल्ली बनाई गई ये कैसे बनाई गई, कैसे आर्किटेक्चर था इसका, ये कॉम्बिनेशन था वेस्टर्न क्लासिकल एलिमेंट्स एंड ट्रेडिशनल हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये कंबाइन करके ये सिटी बनाई गई थी. ओके. Now, on page number 51, now we have to study about the old city. अभी हमने न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ा, न्यू दिल्ली के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा. Now we have to study about the old city, जो ओल्ड दिल्ली थी. ओके. एज द न्यू सिटी ग्रीव इनटू प्लान्ड मैनर, और जो न्यू दिल्ली थी ये बहुत ही प्लानिंग से कंस्ट्रक्ट की थी. द ओल्ड सिटी फेल इनटू निगलेक्ट, उसकी वजह से ओल्ड सिटी की तरफ सभी निगलेक्ट कर रहे थे. ओके. ओल्ड सिटी को निगलेक्ट कर रहे थे. वाइल द एक्सेलेंट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मुगल एरा ब्रोक डाउन, एंड जो एक्सेलेंट वाटर सप्लाई एंड जो एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम था मुगलों के पीरियड में, ये अब ब्रेक हो चुका था. ओके. द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली, और जो भी पॉपुलेशन था सिटी का ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था. बाय द एंड ऑफ द 19th century, ओपन सरफेस ड्रेन्स रिप्लेस्ड अंडरग्राउंड सीवर, बट दे टू वेयर insufficient. Even the bowlies or wells in course of time fell into disuse, and जो भी wells वहाँ पे थी, बाउलीज बोलेंगे उसे हम, तो ये डिसयूज़ हो चुकी थी. ओके. मीन्स जो ओल्ड सिटी थी यह बहुत ही ख़राब हो चुकी थी. ओके. जो ड्रेनेज सिस्टम था ये भी यहाँ का मेंटेन नहीं कर रहे थे. ओके. The grand Havelis, which used to be the pride of the old city, began to collapse. And जो grand Havelis थी, जिसे हम बोलेंगे big building from earlier period, okay, from Mughal period, जो pride था, जो अभिमान था, प्राइड मीन्स अभिमान. ओके. जो ओल्ड सिटी का प्राइड था अब ये कोलैप्स होना स्टार्ट हो चुकी थी. ये जो हवेलीज थी ये कोलैप्स हो रही थी. कोलैप्स मीन्स गिरना. ओके. फेल डाउन. मैनी मुगल्स एरा एफ्लुएंट क्लासेस मीन्स जो रिच पर्सनस वहाँ पे थे, लैंडलॉर्ड पर्सनस थे, उसे हम बोलेंगे एफ्लुएंट क्लासेस. अनएबल टू मेंटेन सच लार्ज एस्टैब्लिशमेंट, और ये ये लार्ज एस्टैब्लिशमेंट था, ये जो लार्ज बिल्डिंग्स वहाँ पे थी, हवेलीज थी, इन्हें मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. ओके. बिगेन टू सेल ऑफ पोर्शन ऑफ देयर हवेलीज, और उन्होंने अब जो हवेलीज थी ये इसका कुछ हिस्सा बेचना स्टार्ट कर दिया था. द मर्केंटाइल क्लासेस परचेस्ड सम वाइल अदर्स टर्न इनटू रुइंस, और कुछ मर्केंटाइल क्लासेस ये हवेलीज खरीद रहे थे एंड कुछ खंडर बन चुकी थी. रुइंस मीन्स खंडर बनना. ओके. Often shops or warehouses sprang up on the street in front of the हवेलीज, एंड जो हवेलीज वहाँ पे बनाई गई थी इन मुग़ल पीरियड, अब ये हवेलीज के सामने कुछ शॉप्स बन चुके थे एंड कुछ वेयर हाउसेस मीन्स स्टोर रूम. ओके. टू decongest the old city in 1888, Robert Clark put forward the scheme called Lahori Gate Improvement Scheme. वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट आया था. ओके. जो रॉबर्ट क्लार्क ने फॉरवर्ड किया था, Lahori Gate Improvement Scheme. As per this scheme, a new type of market square was to be developed and the streets were to be laid out in a grid pattern. And ये जो स्कीम थी, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, यहाँ पे न्यू मार्केट स्क्वायर फॉर्म हो रहा था, डेवलप होने जा रहा था, एंड जो स्ट्रीट्स थे ये ग्रिड पैटर्न में बनते जा रहे थे. ओके. ग्रिड पैटर्न मीन्स नेट. ग्रिड मीन्स नेट.
However, Klargunj, as it was called, failed to achieve its objectives. And in 1936, the Delhi Improvement Trust was set up, and it introduced a different housing plans for people of different economic backgrounds. And in 1936 there were दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप एंड ये जो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, ये जो हाउसिंग प्लान्स थे, अलग अलग हाउसिंग प्लान्स थे, ये इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के थ्रू. ओके, फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, जो अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग थे, इनके लिए अलग अलग प्लान्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए. फॉर इंस्टेंस, दरियागंज वॉज मेंट फॉर द एफ्लुएंट क्लासेस. और ये जो दरियागंज था, ये जो रिच पर्सनस थे, एफ्लुएंट क्लासेस था, इसके लिए दिया गया. The area was divided into blocks and houses were developed around pass. And यहाँ का एरिया अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एंड जो पार्क्स थे उसके अराउंड हाउसेस डेवलप किए गए. Then Delhi after the partition, and there were partition, okay, in 1947. And how was Delhi after this partition? We have to study about the situation after the partition of Delhi. Okay, in 1947 India was partitioned, and Pakistan was created. And you know, in 1947 we have got the independence. Okay, हम आज़ाद हुए 1947 को. But there were partition also between India and Pakistan. Okay, India was partitioned and Pakistan was created, और पाकिस्तान क्रिएट किया गया 1947 में. Okay, a large number of people from both sides migrated across the borders. and बहुत सारे लोग दोनों तरफ से माइग्रेट होते गए बॉर्डर क्रॉस करके. ओके, माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे सेट होने के लिए जाना. ओके, द रेफ्यूजीज ऑक्यूपाइड होम्स वैकेटेड by the Muslims, while some found shelters in refugees camps established by the government of India. and जो refugees थे, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ओके, रेफ्यूजीज मीन्स शरणार्थी, उन्होंने जो मुस्लिम्स के होम्स थे वहाँ पे वो रहने लगे. एंड कुछ रेफ्यूजीज़ के कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए बाय गवर्नमेंट. ओके, इंडियन गवर्नमेंट. द अदर्स हैड टू लाइव इन टेम्पल्स, और कुछ refugees temples and gurudwara and colleges, schools, military barracks and कुछ रास्तों पे भी रहने लगे. जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे उसे हम बोलेंगे रेफ्यूजीज़. और ये लोग कुछ जो मुस्लिम्स के होम्स खाली हो चुके थे, जो मुस्लिम्स यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ पे रहने लगे. कुछ लोगों का कैंप्स एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट थ्रू. एंड कुछ लोग टेम्पल्स, गुरुद्वारा, कॉलेजेस, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड इवन ऑन द स्ट्रीट्स ऑल्सो रहने लगे. ओके, द लार्ज स्केल माइग्रेशन चेंज द सोशल सेटिंग ऑफ दिल्ली. और बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने की वजह से जो सोशल सेटिंग था दिल्ली का, ये चेंज होता गया. न्यू कॉलोनीज सच एज द लाजपत नगर, तिलक नगर एंड मेनी मोर केम अप. एंड न्यू कॉलोनीज वहाँ पे फॉर्म होती गई, जैसे लाजपत नगर, तिलक नगर. ओके, shops, businesses, schools and colleges also emerged in order
टू मीट द डिमांड्स ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन। और वहाँ पे जो शॉप्स, बिजनेस एंड स्कूल्स, कॉलेजेस, ये भी अब इमर्ज होने लगे। इमर्ज मीन्स अपीयर होना। ओके, तो जो माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज़ होता गया, वैसे 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 डिमांड्स भी इंक्रीज़ होती गई, और उसकी वजह से यहाँ पे स्कूल्स, शॉप्स, कॉलेजेस बनते गए। इन रिसेंट टाइम्स टू, दिल्ली हैज़ अंडरगोन मेजर चेंजेस इन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर। Many old British period buildings have been demolished, substantially enlarged to रिनोवेटेड, एंड कुछ ब्रिटिश पीरियड की जो भी बिल्डिंग्स थी वो डिमोलिश की गई, हटा दी गई। टू cater to the needs of the growing population, new constructions have been made in the form of commercial and the residential buildings. And जो ग्रोइंग पॉपुलेशन था, इनकी नीड्स पूरी करने के लिए कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाना पड़ा। And however, heritage lovers and environmentalists are against such large scale modern construction that decrease the architectural and the historical value of the city. Now a lesson is completed here. Okay.